गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हम पढ़ चुके थे, उसी के आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट हेडिंग डालेंगे, डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ द बोर मॉडल। डेवलपमेंट leading to the Bohr model of atom। क्योंकि हम जानते हैं थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल डिलीट कर दिया गया है, जो कि कोर्स में नहीं है। तो हम लोग केवल बोर मॉडल पढ़ेंगे कि बोर मॉडल होते क्या है। लिखेंगे इसमें, नील बोर यूटिलाइज दीज रिजल्ट। नील बोर यूटिलाइज दीज रिजल्ट टू improve upon the model proposed by Rutherford। Two development play a major role in the formulation of Bohr model of atom। एक बार फिर सुनेंगे, नील बोर यूटिलाइज दिस रिजल्ट to improve upon the model proposed by Rutherford। Two development play a major role in the formulation of Bohr model of atom। फर्स्ट लिखेंगे, dual character of the dual character of electromagnetic radiation। electromagnetic radiation which means that radiation passes both wave light and particle light properties। एक बार फिर सुन लेंगे, डुअल करेक्टर ऑफ electromagnetic radiation which means that radiation process both wave like and particle like properties। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, डुअल करेक्टर ऑफ electromagnetic radiation which means that radiation process both wave like and particle like properties। सेकेंड लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट regarding regarding
atomic spectra. यही दो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे. डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possess both wave-like and particle-like properties. Second, experimental result regarding atomic spectra. अब लोग हेडिंग डालेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हेडिंग डालेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हेडिंग डालेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसमें लिखेंगे मैक्सवेल वाज द फर्स्ट give a comprehensive explanation. Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field are microscopic level. He suggests that when electrical charged particles move under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic wave or electromagnetic radiation. इसके बाद इसके ऊपर कुछ कैरेक्टर बताए गए जो हम लिखेंगे. मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवाइवल दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर. कौन कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट लिखें या नीचे और लिख लें. ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, वी विल कंसिडर हर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट पॉइंट लिखें. द ऑसिलेटिंग electrical and magnetic field produced by oscillating charged particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Next line, next point. Unlike sound wave or wave produced in water, electromagnetic wave do not require medium
and can move in vacuum. Next point लिखेंगे, it is now well established that there are many types of electromagnetic radiation. Which differ from one another in wavelength. These constitute what is called electromagnetic spectra. Next lines लिखेंगे, different region of the spectrum are identified by different name. ये लिखेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, डैश लगा के इसके आगे लिखेंगे यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग. सेकंड लिखेंगे माइक्रोवेव रीजन, डैश लगा के लिखेंगे यूज्ड फॉर रडार. नेक्स्ट लिखेंगे सी, ए बी हो गया, सी हो गया. इंफ्रारेड रीजन, डैश लगा के लिखेंगे यूज ऑफ हीटिंग. नेक्स्ट लिखेंगे यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन, डैश लगा के लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट. नेक्स्ट पॉइंट एक और है, थर्ड हो गया था, फोर्थ लिखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज्ड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन these radiation are characterized by the properties namely frequency and wavelength and wave number. हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको एन आर एफ आर न्यू से सिंबल देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एन एफ आर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से करते हैं. वेवलेंथ को किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं. फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है. आर प्रति सेकंड भी कहते हैं. वेवलेंथ है, उसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर. इसलिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, म्यू बराबर बी बराबर या सी बराबर म्यू लैम्डा. सी इज द वेयर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. C equal nu lambda. C is the speed of light. This value क्या हो जाएगा? C equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इसको कॉपी में लिख लेंगे और ग्रुप में सेंड कर देंगे. और जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों जरूर कर दें, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे. क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसके बाद में हम कुछ समझाने वाली चीज़ें पूरी आएंगी जो केवल हम उसको एक्सप्लेन ही करेंगे. तो इसलिए हो सकता है कि बीच बीच में हम भेजते रहें. तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई चीज़ हम बताएं, कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए. थैंक्स.